Hi there everybody, this is Surbhi Jogi from Disha Education Consultancy. हम बहुत important topic के बारे में discuss करेंगे which is about the NEET exams which is coming in the next month, that is in September. You must have come across many videos but this video is very important because मैं आपको कुछ important points बताऊंगी about NEET. उसके साथ we will also discuss about the dates as well as the cities, the medium of the instruction, that is the examination that you need to give, and ऐसे काफ़ी सारे important points है like the syllabus, the paper pattern जो हम इस video में discuss करेंगे. So stay with me till the end of the video so that you can cover and understand all of the rules and regulations or the parameters which you need to know as a student while you're appearing for NEET 2021. So first and foremost, that is NTA जो है, that is National Testing Agency, is inviting all the applications for all the students जिनको NEET देनी है in September 2021. NEET, that is National Eligibility Cum Entrance Test. Okay, so they have invited application for all the medical courses that you want to opt for all the medical institutions in India, as well as वो भी institutions इसमें cover होते हैं जो किसी और rule से govern होते हैं, that is governed by any other law in force at present. So they are covering all the medical institutions. Secondly, the languages जिसमें ये test ली जाएगी. So there are 13 languages. You can say English, Hindi, Malayalam, Kannada, Telugu, Gujarati, Punjabi, Urdu, Odisha, Assamic, Bengali, and so on, which you can check on their website. So these are the languages. Now, what is more important this time and you need to really give attention is ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है नीट का वो दो सेट में डिवाइड हो गया है, दैट इज सेट 1 एंड सेट 2. तो ये है क्या, जो पहला सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपका एप्लीकेशन में आपको भरना है वो जो है दैट इज यू हैव टू फिल व्हाइल आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो. उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो मांगेंगे उसके पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है. फिर सेकेंड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको भरनी है व्हाइल द रिजल्ट आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड, या फिर जब आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करने वाले हो उस वक्त आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है. सो दिस टू सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर फिलिंग योर फॉर्म and keep this thing very much in mind that अगर आप कोई भी set of information नहीं fill करते हो जो required है या mandatory है तो आपका candidature cancel हो जाएगा. So now let's talk about the important dates जो आपको याद रखनी है. पहले तो जो application form का जो date है, जो online application already शुरू हो चुका है, it started on 13th of July and this application is going to be accepted till 6th of August. अब 6th of August को रात को 11:50 PM तक एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होने वाली है. और जो फीस का पेमेंट करना है यू कैन पे थ्रू एनी मोड, दैट इज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और एनी मोड इज ओके. वो मोड आपको पेमेंट करनी है टिल 7th of August. अगेन द टाइमिंग विल बी 11:50 तक. इन केस आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस वो लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं फ्रॉम 8th of August to 12th of August. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है. इसके अलावा जो सिटीज़ होती है जो वो लोग डिक्लेयर करेंगे कौन सी सिटीज़ में एग्जामिनेशंस कंडक्ट होगी वो सब आपको 20th अगस्त को उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा. अब ये सारी डिटेल्स और जो एप्लीकेशन आपको कौन सी वेबसाइट पे भरना है तो आपको भरना है ऑन www.neet.nta.nic.in. ओके, so apart from these dates, I would also like to inform that आपकी एग्जाम डेट कब है. तो आपकी एग्जाम डेट है on 12th of September. फाइन, एंड आपका टाइमिंग होगा फ्रॉम 2 to 5, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. 12 इज अ संडे जब ये एग्जाम्स कंडक्ट होने वाली है. एंड आपका जो सेंटर होगा और जो डेट वगैरह जो डिटेल्स आपको चाहिए वो सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा. अब एडमिट कार्ड कब आने वाला है तो दैट इज गोइंग टू कम 3 days prior your examinations. So make sure that you visit this website also on daily basis. रोज सुबह या फिर रात को make sure कि आप एक साइड
एक बार NTA की वेबसाइट को डेफिनेटली विजिट कीजिए, क्योंकि ये सारे चेंजेस वो जो बनाने वाले हैं वो कॉन्स्टेंटली आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ओके, सो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोल रही थी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, दैट इज यू हैव टू विजिट द वेबसाइट दैट आर स्पेसिफाइड neet.nta.nic.in। उस वेबसाइट पे लेफ्ट हैंड साइड के सेक्शन में आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा। इट्स अ PDF ऑफ 132 पेजेस, पर इन 132 पेजेस में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेज नंबर 14 एंड 15, जिसके बारे में मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाली हूँ, wherein I'm going to cover about the syllabus, the paper pattern, the city selection and your language selection to the duration of the course। So पहले मुझे बात करनी है आपके साथ about the syllabus। तो आपका सिलेबस क्या है? दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, दैट इज NMC, आपको उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, दैट इज www.nmc.org.in, बिकॉज उनकी वेबसाइट पे उन्होंने जो सिलेबस डिसाइड किया है उसी सिलेबस के हिसाब से आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि काफ़ी बोर्ड्स ने अपने सिलेबस में रिडक्शन किए थे, सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो यहाँ पे व्हाट NMC हैज़ डिसाइडेड दैट सिलेबस तो उन लोग ने जो अपलोड किया है आपको वही प्रिफर करना है, बट इसके लिए उन्होंने आपको जो पेपर पैटर्न है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो दो जगह पे स्प्लिट किए हैं, दैट इज सेक्शन A एंड सेक्शन B। तो जो सेक्शन B है उसमें उन्होंने आपको चॉइसेस दिए हैं। अब ये चॉइसेस कौन सी है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले तो 180 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, विच इज फॉर 180 मिनट्स, दैट इज 3 hours। नाउ इन दैट देयर आर 2 sections, सेक्शन A एंड सेक्शन B, which will be in all 4 subjects। So ये 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, in biology it is going to be botany and zoology। तो इस 4 सब्जेक्ट को 2 जगह पे स्प्लिट होगा। जो सेक्शन A है वो 35 क्वेश्चंस होंगे फॉर 4 marks ईच, एंड जो सेक्शन B होगा वो 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं। मतलब आप 5 क्वेश्चंस अपने चॉइस के हिसाब से छोड़ सकते हो, 10 सिलेक्ट करके आपको देने हैं। अगेन हर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फॉर 4 marks। So if you calculate 35 from section A and 10 from section B, so that will be 45 questions from each subject। So 45 questions into 4 subjects means it's a total of 180 questions। So यहाँ पे आपको NMC ने रिलीफ दिया है if because of the change of the syllabus जो बोर्ड के हिसाब से होता था, right? अब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन का आंसर राइट है तो यू आर गोइंग टू गेट +4 marks, एंड इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है तो नेगेटिव मार्किंग होगा, 1 mark इज गोइंग टू बी डिडक्टेड। सो मेक श्योर दैट यू आर श्योर अबाउट व्हाट आंसर्स यू आर गिविंग, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होगा। एंड इन केस ऐसा हो गया कि आपने कोई क्वेश्चन को छोड़ दिया है, सो वो क्वेश्चन इग्नोर हो जाएगा, मतलब उस पर ना कोई नेगेटिव मार्किंग है ना कोई मार्किंग है। So it's not a worry if you're leaving any questions, but if you're giving any wrong answer, -1 for every correct answer, it is +4। Now very important, जो आप प्लीज ध्यान से सुनिए, मैंने बोला था कि एप्लीकेशन फॉर्म में आप चेंजेस कर सकते हो, एंड द डेट्स दैट आई टोल्ड यू वाज फ्रॉम 8th of August to 12th of August। But when it comes to mode of selection of your test papers, अगर आपने एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है, आप उस लैंग्वेज को चेंज नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हो, यू मेक अ प्रॉपर डिसीजन एंड यू सिलेक्ट द लैंग्वेज। अब इसमें जब इंग्लिश का है तो ऑब्वियसली पूरा क्वेश्चन जो टेस्ट बुकलेट होगा वो इंग्लिश में होगा। हिंदी और रिलीजियस लैंग्वेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज होने वाली है, दैट इज इंग्लिश भी आएगा उसमें, योर सिलेक्टेड लैंग्वेज एंड इंग्लिश। अब इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो उन्होंने स्पेसिफाई की है कि अगर कोई ऐसा आंसर है जिसका अपने रिलीजियस लैंग्वेज में काफी मीनिंग निकलते हैं, तो जो इंग्लिश वर्जन होगा उसको करेक्ट मान के मार्क्स दिए जाएंगे। दिस इज NMC's डिसीजन। आई मीन टू से कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही वर्ड के बहुत अलग अलग मीनिंग होता है, तो जो इंग्लिश वर्जन होगा उसको करेक्ट मान के वो लोग मार्क्स देने वाले हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर स्टूडेंट के लिए होता है इज द सेंटर। So as per Appendix 6, NMC has decided that हर स्टूडेंट अपनी 4 प्रिफर्ड सिटीज को सिलेक्ट कर पाएगा।
Okay, I told you that the cities are going to be announced on 20th August. So that day what will happen is you will be able to select 4 cities. So which 4 cities? But you have to select the city that you reside in and the cities which are your neighboring cities. You cannot select a city जो बहुत आपके residence से दूर हो, ये allowed नहीं होगा. Now, अगर आपने कोई सिटी को सिलेक्ट कर लिया है लेकिन हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सेंटर में उनके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन होने चाहिए उतने नहीं हुए, तो एनएमसी ने राइट्स रिजर्व किए हैं कि वो आपका सेंटर चेंज कर सकते हैं. ओके, ऑल्सो ये अप्लाई होता है फॉर मीडियम ऑफ लैंग्वेज. अगर ऐसी कोई लैंग्वेज सिलेक्ट की गई है, आपने कोई हिंदी या रिलीजियस लैंग्वेज सिलेक्ट किया है और वो पर्टिकुलर सेंटर के अंदर उतने बच्चे नहीं हैं जितने उन लोग को चाहिए उस लैंग्वेज के लिए, तो अगेन आपकी सिटी चेंज हो जाएगी. बट कीप इन माइंड दैट एनएमसी पूरी तरह कोशिश करेगा कि आपकी सिलेक्टेड सिटी को ही वो प्रेफरेंस दे. बट इन केस अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता, तो दे हैव ऑल द राइट्स. So that is all that I would like to tell you about, and thanks for watching this video. If you have any more questions regarding any of the topics or related to your NEET exams, please do write to us below, and you can contact the Disha Education Consultancy for more assistance.